देखो दिल्ली की वाइब पता है कब शुरू होती है? जब आपका दोस्त बोले गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है। दिल्ली में रह के ना आपको अल्फा कल्चर समझ आ जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या इस लड़ाई में मैं घुसूं। Here's a question to you. पिटे हो लाइफ में? अरे भाई, this was right after the fight. No way. Okay. No way. And then slowly I'll show you. Look at that. ये होता है दिल्ली का लड़का। ये कैमरा दिखाओ। हंस क्यों रहते आप? सब तो अब उनको ना ठसन भी आ जाती है, वो लड़की भी देख रही है तो कहता bro, you really want to get the f*** out of here before we f*** you up. Ranveer, bro, you're so cool. And he's like, bro, you know, me and Anushka was saying you're so cool. At that, I had come out of Big Boss, right? So I'm like, Ranveer, give you a number, man. You know, maybe we can walk out together something. And bro, I've been walking out all my life, right? तो मैंने ऐसे बड़े भाई की तरह बोला यार, ठीक है कि बड़े भाई छोटे भाई whatever. Bro, yeah, bro, take my number. Bro, he gave me wrong number. So bro, I want to ask you, what kind of vibe do you want? Do you want like a very posh Los Angeles, Toronto kind of vibe, or you want Delhi वाली vibe? We want Sid. Sid ना? Real Sid. तो दिल्ली वाली vibe रखे? जैसी भी। देखो दिल्ली की vibe पता है कब शुरू होती है? कब शुरू होती है? जब आपका दोस्त बोले गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है? This is Insta 360 camera. Have you heard of it? I've heard of it. I've never been, you know, whatever. But today I'm eating it. So It will shoot everything. Okay, brother. You and I, everything. You and I, everything. And So, I love how you've kept the audio mic and कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए भाई। गोल्डन वर्ड्स निकलते हैं कभी कभी। Golden मैं तो words. सोच रहा हूँ एक ना ऐसे टोपी लूँ आईपीएल में अंपायर पे नहीं होती ऐसे और वो मेरे पे वाला। रहा करे। एक एडिटर रख लूँ उस पे नौकरी पे कि भाई पूरे दिन में से ना जो तेरे को बढ़िया लगे वो अपने एक पर्सनल बिग बॉस डाल दो। Sid, welcome to Verified. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मुझे एक्चुअली याद है जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना था वेरीफाइड इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मेरे को ना मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड होती थी, वो भी टीवी में थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कभी ऐसे हम ऐसा कोई पब्लिक कुछ हुआ नहीं, तो वो बिग बॉस में आई हुई है, तो उसका कोई सोशल मीडिया वाला बंदा था। अच्छा। वो आगे गया, वो मेरे को कहती बेबी तुम ना अपना वो करवा लो, वेरिफिकेशन करवा लो। उस टाइम भी तो आधार कार्ड वगैरह भी इतना वो नहीं था, है ना, तो मैंने कहा वेरिफिकेशन करवा लो। नहीं, सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया बिकॉज भाई मैंने तो उस पर पूरी रील बनाई थी। मैं तो बड़ा उदास था क्योंकि लिविंग इन एलए एट दैट टाइम व्हेन यू कुड नॉट बाय अ वेरिफिकेशन साइन, करेक्ट। भाई मतलब यही टोरा चलता था एलए में, तो और क्या टोरा हम दिखा लेंगे। पर सबसे पहले तो, अरे भाई साहब आप चलाओगे तो बेल्ट अपने आप आएगी। देखो दिल्ली वाले हम थोड़ा बहुत तो देखो हिलेगी तब आएगी बेल्ट, इतने ज्यादा हम वो नहीं हो सकते मतलब। तो यस, हाँ, you were saying. तो वही टोरा चलता था, you know, you go inside a club and you're like, you know, like, hey, what do you do? And they ask you, what do you do? So yeah, you know, I used to work for MTV as a presenter and I'm an actor. And then, oh, you got Instagram. And as soon as somebody goes on Instagram and they see blue verification, right? At that time, when you could not buy it, and they'll be like, there's like a certain connect, you know, because people are like, oh, this guy's legit. He's not just like somebody trying to show off with a $20 blue tick, right? Yeah. But the day they started selling blue tick, I'm like, why would somebody even buy a blue tick? Because the very fact that people are buying blue ticks, it just doesn't mean anything. It's just basically you're buying a domain, right? But do you think it is tech companies making more money? That's it. Bro, you think they ever care about our goals and society, like betterment and all of that crap which we sometimes happen to think? No. They don't, bro. They are blood-sucking leeches, okay? Yeah. And they will suck the very last drop until they can receive $1 worth of profit, you know? So that's it. And very interesting point, Sid. You know, नहीं होता था वेरीफाइड टिक, किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल जाता था, right? People used to go maybe like write emails. I remember they used to write emails to Twitter, write emails to I think Meta. You needed to have some 3 paper articles. Correct. And some. Who the? देख रहा है कैसे कौन मार रहा है? I really hope. नहीं. She's not. Okay. Okay. हाँ. 3 आर्टिकल होने चाहिए थे. हाँ. या फिर फिल्म होनी चाहिए थी, something बहुत criteria. You had to be like a legit person, right? Because Instagram did not want somebody to be verified and end up kidnapping somebody or murdering somebody. Correct. Right? So I think that was good, bro. Like you earned it. You earned it.
you know, bro, how LA works, right? Like, I think Toronto is like somewhat similar, right? Like, Very it's a big similar. city, and you know, people just try to be and try to pretend to be something which they're not, right? तो हर जगह खड़ा यही दिखा रहा है, अब $20 का तो वेरिफिकेशन लेके और यू नो $250 की एस्केलेड एक नाइट के लिए हायर करके और उसमें दो यू नो $40 की पर आवर की दो मॉडल्स बिठा के कि ब्रो आई एम बिग बॉलर, you ain't baller, you know, because real ballers, they don't need shit like that, you know. That is true. Real ballers just ball. Yeah, man, they just ball, and they actually, the thing is, real ballers understand that I am the ball. Are you going to party? I'm like, where? I am the party. That is so true. Okay, tell me something. Yeah. You talked a lot about LA, Yeah. and now you're here in Delhi. Yeah. What are you doing here in Delhi? Bro, so of course my home is here, my mom is here. You know, this is our people. Yes. I love it. एंड ना मेरे को लगता है मैं बड़ी बंजारी सोल है मेरी, ठीक है, मैं एक जगह पर नहीं टिक पाता. मैं ना दिल्ली में रह लेता हूँ 5-6 महीने हो गए, तो मुझे दिल्ली में नुक्स नज़र आ जाते हैं. मेरे को ऐसा लगता है यार LA जाऊँ क्या, वहाँ बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बीच और ये वो. मैं उन गधों से 2 महीने बाद कर लेता हूँ ना, मेरे को लगता है यार ये हाँ चलो यार यहाँ से. You know, because they like sometimes, you know, and bro, I live in Manhattan Beach or Hermosa Beach. People are like, bro, they're really like disconnected from the rest of the world. Correct. And stupid enough that they think that they're the ones who are liberals and they're gonna save the world, but they're actually very dumb sometimes to even talk to. Like, you know, it's incredible. Like, don't expect yourself to be enlightened with anything but just sheer stupidity. Very interesting point you brought over there. Said you talked about कैसे बंजारा सोल है. हम लोग जाते हैं, we travel, you know, we like to go to different places, learn new cultures, experience new things. North America, have you like kind of noticed the world is just very small or very angular to them? Bro, वो everywhere. अपनी स्टेट से बाहर ही नहीं जाते यार. So see, that's the thing. And I used to think like that, okay? But then when I traveled across America, right? Bro, they don't need to go out, bro. That is true. They don't need to go out. They like within California, bro. I have like within bloody 100 kilometers of my within 50 miles of my house. I have Big Bear Mountains, which is ice, right? Snow. Correct. Then you come down, you have the valley, Riverside, you have San Diego. Bro, within 50 miles, all of this. You have the beach, you have the ocean. You literally have every season just in California within 50 miles. And our party place, Vegas, is also not that far off. Vegas is the most overrated piece of shit ever built on the face of this galaxy. Bro, I can't agree with you more. Probably, I think you and I are the only people who think like that. Because fucking I've lost half of my generational wealth in Vegas. So I just, bro, it's a scam. It's a scam. They have built all of these big ass hotels, you know, so fucking the strip and whatnot. What is there on the strip to do? Nothing. They'll get you drunk. They'll get Scamsters. they have left those hot you know, models just good for show to fucking get you coked up and wired up and all of that. And then they have put casinos in every little smart step you might think you're gonna dodge it from. You know, I tell a lot of people this, that Vegas is a city designed to take money out of your pocket at every step. Yes. Right? Even if you go to a urinal over there, uske bahar bhi they put a freaking slot machine there, right? Bro, which is crazy. Bro, Vegas, to be honest, it is so you know the story about Vegas, right? It was basically a desert, right? And the authorities were thinking, and the people from that town, they were thinking, right? People of Nevada State were thinking that we have such a big piece of land, we don't have any agriculture, we have so fucking desert. So how do we build an economy? Then they came up with this plan and they said, let's make this the Atlantic City of the West. Correct. Right? Before Vegas, it used to be the Atlantic City. Correct. Which was on the East Coast. But they saw an opportunity and they said nothing like this exists in Vegas. And they just like and they built
fucking death for a lot of people because it is so common for people to kill themselves in Vegas because they just literally end up losing everything. And the ones who don't end up killing themselves, on purpose, they end up dying in many various or killing someone else. Or killing someone, that's also death. Bro, I've been to Vegas and the worst are those pool parties, okay? Because those, from the top of it, like if you see from a drone camera point of view, bro, they will look like, oh my god, I'm in heaven, right? Because only beautiful people, lovely fucking pool. You actually step into that vicinity of the pool and the, those, what do you call them? Bathing beds and shit, right? Bro, it is 50 degrees Celsius and you're drinking alcohol, which is, by the way, $30 a drink, okay? And it's like, it just hits you all together. And I've seen people just literally falling drop dead, you know? So, yeah, anyway, bro. So, you talked about like, जगहों में कमियां ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि चलो कहीं और चलते हैं. दिल्ली में अभी तक क्या कमी ढूंढी? और मैं दिल्ली में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, ठीक है? दिल्ली की लाख कमियों से सबसे बड़ी एक जो खूबी है, वो ये है कि मैं दिल्ली से प्यार बहुत करता हूँ. दिल्ली ने मेरे को जिंदगी में एक ऐसा करेज दिया है जो, भाई झूठ नहीं कह रहा, लॉस एंजलिस कभी आओगे ना ऊपर वाले की दुआ से, I'll take you some of the most gangster areas जहाँ पे ना इंडियन लौंडे तो मतलब उसका तो नक्शा भी नहीं जानते कि इन गलियों में घुसना भी है, ठीक है? और वहाँ पे ना आपके भाई के लोग बोलते हैं what's up Sid, how you doing dog? And that's because I'm from Delhi. I understood the alpha culture very at a very young age. The alpha culture does not mean कि किसी को जाके धमकी देनी है ये कर दो. No. The alpha culture means to understand your power and to not underestimate the other person. Absolutely. Okay? The real alphas don't need to shout it out. Okay? And especially in a place, bro, I have goosebumps, look. And especially in a place like Los Angeles, bro, there is a certain way people, you cannot be stupid or a bully and and you cannot be sissy because then they will walk all over you because they love walking. They bro, men out there, especially the Mexicans, the my brothers from the hood, bro, they have a strong sense of who's a little bitch, and they'll make so even your smile and everything, they'll calculate in a second. Figure out. Oh, they'll figure it out. So bro, और अगर आप दिल्ली से हो तो आप ढल जाओगे. भाई देखो, मैंने तो ये सीखा है कि भाई जो है ना, देखो अंत में मौत ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है? गलत करना नहीं मुझे, और गलत मैं अपने साथ होने नहीं दूंगा. टू अ पॉइंट आई विल एनालाइज दैट डज दिस बैटल ब्रिंग एनी प्राइज टू मी व्हिच इज वर्थ फाइटिंग फॉर. बट देन व्हेन अ पॉइंट कम्स दैट द प्राइज इज your self-respect and self-esteem and as a man what you stand for, that is when I say, okay brother, now it is going in a direction where I am ready to either die or kill you. So only step into it if you're ready for both of those things or either of those. You talked about a very important point, right? Like कि दिल्ली में रह के ना आपको अल्फा कल्चर समझ आ जाता है. आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या इस लड़ाई में मैं घुसूं, मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं है. Here's a question to you. पिटे हो लाइफ में? अरे भाई ब्रो, 2.5 साल पहले की बात है. मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. मेरे थैंकफुली मैं आईफोन लेके आया हूँ. ब्रो मेरे को जान से मार दिया था हॉलीवुड के पास ऑलमोस्ट. नो वे. ब्रो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप अपने कैमरे में दिखा. मैं ऑलमोस्ट जान से मार दिया था. नो वे. मेरे रिब्स तोड़ दिए थे, ठीक है? मेरा पूरा यहाँ से चेहरा चला गया था. जो पुलिस वाले आए थे ना बाद में, उन्होंने बोला था कि we've been here and it's a place called Glendale. So Glendale PD came and they're like, we've been here for 15 years. We haven't seen a bar fight go this route. They said they were not hitting to hit you, they were hitting to kill you. Yeah. So this was right after the fight. No way. Okay. No way. And then slowly I'll show you. Look at that. ये होता है दिल्ली का लड़का. ये कैमरा दिखाओ. हंस क्यों रहते आप? पर भाई वो 4 थे, ठीक है? और मेरी इसमें पसलियां भी तोड़ी हुई हैं. तो हाँ, तो
तो बेसिकली ब्रो मेरी वो पूल प्लेस आई ऑलवेज यूज्ड टू गो देयर राइट एंड द गर्ल आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम शी वाज अरबी एंड समथिंग मिक्स हाँ तो शी वाज योगा टीचर प्रीटी फरोशियस आल्सो बट शी सेड आई एम गोना गो होम इट वाज मंडे नाइट मैं गया अंदर तो सिर्फ वो छोटी सी बार यू नो हाउ वॉल इन द होल काइंड ऑफ बार्स राइट और बारटेंडर जिसको मैं जानता था ठीक है इज अ गे ब्लैक गाय आई नो हिम राइट एंड दीस गाइज हु वर प्लेइंग पूल दे वर न्यू सो वन ऑफ देम वाज अ वाइट looking but Mexican guy, one black guy, one guy with long hair, and one girl. So I go, and at that time, two of those guys were at the bar, and I didn't pay attention because they're probably in the bathroom or something. And the pool table was here. तो मैं pool table पे गया, मैंने उससे पूछा, bro, can I get the next game? तो वो कहता है, in a very cocky sense, कह रहा है, only if you like to bet. मैं कहा how much are we talking? And bro, trust me, pool is one of those things. मैं मतलब मैं घुस जाऊंगा क्योंकि bro I Delhi नहीं मैं bro I bet in pool ठीक है मतलब मेरी गेम बहुत अच्छी है तो मैंने उसको बोला मैं कहा how much are we talking? तो कहता $100 मतलब उनके लिए ना $100 ऐसे होते हैं बहुत बड़ी सही बात है तो मैं कहा ना bro let's make it 200 though तो मैंने बोला और उसकी ना लड़की मेरे को देखने लग गई एंड भाई थोड़ा सा ऊपर वाली की दुआ भी है ना तो उसको वो अब इनका क्या होता है टेरिटोरियल बहुत होते हैं तो ये समझ गए कि ये यहाँ से तो नहीं है अमेरिका से नहीं है साला लग अच्छा रहा है इंडियन उनकी कभी ऐसी नहीं होती ठीक है तो अब उनको ना ठसन भी आ जाती है वो लड़की भी देख रही है तो कहता bro you really want to get the out of here before we f you up I said bro firstly what the happened to the bed and what the you about V I said aren't you a man I said if you go I said do you say the same thing to your girl when you talk about making love do you call your buddies and bro उसने आओ देखा ना ताओ उसने धक्का दे दिया उसने भाई जैसे हाथ छोड़ा अब वो लड़का मैंने कहा 2 करो चल मैं ठीक है देख लूंगा लड़की तो लड़ेगी नहीं मेरी वही किस्मत खराब हो गई मैं वो 2 को मेरे को पता ही नहीं था वो 2 भी है तो इसको मैंने पंच मारा ठीक है भाई ये यहाँ से आया मेरे को ये था कि चल 2 से तो मैं निपट लूंगा एक को पकड़ लूंगा वो तार तगड़े में थे भाई वो पीछे से आया मेरे ग्लास ही मारा देखे उसने ग्लास मारा मैं नीचे गिरा अब भाई जब नीचे गिर जाते हो जितने भी गामा हो आप अब उस टाइम में तो फिर सर्वाइवल की फाइट है पहले तो ठीक है तो मैंने अपने को कवर कर लिया और मैंने ब्रो आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट आल्सो ठीक है आई हैव ट्रेन्ड मार्शल आर्ट्स फॉर 4-5 इयर्स तो मैंने कवर किया और मैंने लाते चलानी शुरू कर दी कि भाई भीड़ छटाऊं तो वो भी थोड़ा डरे कि अब भाई ग्लेंडल अच्छा एरिया है उन्होंने कहा पुलिस आएगी तो वो भी बाहर को हुए ठीक है अब भाई उस टाइम में फितूर ऐसा आ चुका था कि भाई देख मेरे गूज़बम्स हैं बताते भी तो भाई वो भाग रहे हैं मैं उनके पीछे गया हूँ मैं come on भाई you ain't gonna fucking leave like that तो मैंने उनमें से एक को पकड़ लिया अब मैं तो हूँ तो चूत वो 3 फिर सब वापस आ गए उन्होंने फिर कूटा ठीक है इस बार उन्होंने हील मेरे मारी रिप्स पे और एक ने मेरे मुंह पे लात मारी भाई मैं हो गया ब्लैकआउट हो गया मैं फिर उठा ठीक है अब उन्होंने कहा वो भाई भागने लग गए वो कह रहे ये तो डेथ विश पे है ठीक है वो कह रहे हम ही भाग जाते हैं तो उनमें से कोई अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ गया था तो एनीवे हाँ पुलिस गॉट देम एंड कोर्ट ने उनको 6 महीने का एक वो दिया सेंटेंस दिया और मेरा जो भी सामान टूटा था और पिटाई हुई थी वो सारा सरकार ने भरा आपको पता ही है भाई वहाँ के हिसाब किताब बट या मैन इट्स लाइक and bro I will do it in a heartbeat again and one of my friends he asked me this question तेरे को नहीं लगता तू बड़ा हो गया मैं कहा bro listen it's not about बड़ा और छोटा it's about there is a certain way और मैं लॉन्डो पे कभी अपनी जिंदगी में चौड़ा नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई होगा तो मैं चलिए चलूंगा bro I'll give you respect if you give me respect ठीक है that's how the world should be yes but if you think you're going to overpower me because of your race because of some other kind of bullshit discrimination you might have in your mind or because of you have like if you have 10 more guys against me I will still call you out bro I'm that kind of person I'll be like bro anybody can beat anybody with 10 guys okay so really let's imagine if those were 4 guys or 5 guys right I would have literally called them out and I would have said if you guys think you're men honestly with the out of me go home and look in the mirror because it's very easy okay easy. Come one by one and that's fair तो भाई मेरे को ना मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं
पीछे हटने की, और ना मैं और मेरे को पता है कि मेरी आदत ऐसी है कि मैं ना तह तक जाऊंगा, तो इसीलिए मैं कभी पहले बदतमीजी करता भी नहीं। मैं किसी से ब्रो आई लव यू, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं किसी से मजाक नहीं करता अननोन से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसको बुरा लग गया ना और उसने कुछ कह दिया, ये बात बहुत खींचेगी, तो आई डोंट डू दैट। एंड मेरी यही बात थी कि मैं स्प्लिट्सविला में और बिग बॉस में मैंने इतना अच्छा किया जिंदगी में क्योंकि आई वाज नॉट द बुली। आई ऑलवेज स्टूड अप, वांटेड टू यू नो कि ना हो मेरे से, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ना भाई दिखावटी नहीं करता काम, मेरे से होते ही नहीं। ये जो है ना ये लोकेशन वाली लड़ाइयाँ और ये वो ये जो आजकल होती है सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कर सकता। मेरे को ना एक लड़का था, एलए की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, डाउनटाउन एलए, बेवरली, ठीक है, बेवरली पे एक बार है, उसका नाम ही बेवरली है, वो आफ्टर आवर बार है। उसमें ना मैं एक लड़के से $3600 हार गया पूल में, उससे पहले वो मेरे से हारा, some shit happened, he commented something about my mom or my sister, something like that, and he is a LA native, right? And he knew that I'm from India, whatever, so he started to be all thuggish, you know, nigga this, nigga that, nah. I said, listen, but I'm okay with whatever you want to do, right? You want to take it outside, we take it outside. You want to shut the up and keep playing, we'll do that, right? So he one day messaged me some weird ass shit on Instagram, and 2-3 messages, you know, something about my sister, just pissed me off while I was in India. Bro, I will show you what I wrote to that guy. And after that, na, he never forget. I said, you know what, buddy? Live your life. I said, live your life. Right now, what you're doing, I cannot do shit to you. But I promise you one thing. It is not difficult to find you. You go to all of these shady ass bars in downtown LA. Okay? I know your full name. I know you work in construction. So I know 3-4 spots where I can hide while you're coming out coked out, because most of the time you're coked out, you cannot even defend yourself. I said, you know what's going to be my move as soon as I see you? I said, my first punch is going to be in your jaw. It's going to make you unconscious. As soon as you fall down, the kick is going to be in your ribs. Okay? I said, I will leave you in so much pain, and then I will write on top of your head. I said, now every message you send me after this, okay, this is going to be one more blow for you. Bro, after that he understood that I am not business. I'm not playing around, bro. Okay, that was a very taken kind of a move, no? Bro, I will come and find you. No, my thing is, मेरे को आकाश ने भी यही बोला था बिग बॉस में, आकाशदीप सहगल ने कहता बाहर निकलेगा मैं चाकू लगवा दूंगा, कर दूंगा। मैं कहा भाई तेरे को मेरे को मारने के लिए ना लॉन्डो की जरूरत पड़ेगी, मेरे को तेरा घर पता है, मैं पता क्या करूंगा, मैं ना तेरे घर की किसी ओने कोने गली में होऊंगा, तू जिस दिन निकलेगा ना अकेला, कभी तो निकलेगा, मैं तुम्हें इतना भूत भर दूंगा ना, उसके बाद मैं दिल्ली पंजाब का ही होऊंगा, तो ढूंढता रहेगा ना, और भाई तेरे को इरिटेशन बहुत होगी, क्योंकि मैं मिलूंगा भी नहीं तेरे को, ठीक है। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मेरे को धमकी देने से पहले ना ये सोच लियो कि मैं ये बुलाने की गेम में करता ही नहीं भाई, मैं करता ही नहीं। एक टेल मी समथिंग, यू टॉक्ड अबाउट यू नो लाइक अल्फा मेल। अल्फा मेल इज बहुत मिसकंसेप्शन भी है उसका। अल्फा मेल का अगर सही डेफिनेशन चाहिए ना जिंदगी में, शेर को देखो, शेर को भूख नहीं होती ना, वो बंदर के आगे टपिया नहीं देता, करेक्ट, कि ओ भूतनी के मालूम है मैं शेर हूँ, जरूरत क्या है शेर को, चल भाई अपना। मेरे को आज के दिन बहुत आंडू बांडू आते हैं भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं भाई ये एल्विश यादव और नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, रजत दलाल और ये सब भाई, ये एक आज की मार्केट के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, लोगों से लड़ना है ये वो, इट्स नॉट necessary that I do that. That is not my forte. People, सर आप तो खत्म हो गए, आप ये थे आप वो थे, नहीं खत्म नहीं हुए सर, हम मैच्योर हो गए, ठीक है, हमें समझ में आ गया, और उस टाइम पे भी समझ में था, मुद्दे की लड़ाई लड़ो, टीवी पे लड़ी मैंने, नेशनल टेलीविजन पे, सड़कों में नहीं लड़ा मैं ब्रो। तो शेर को देखो ब्रो, शेर चलता, जब उसको खाना होता है ना, उस समय वो कुछ नहीं सोचता, ठीक है, कौन है, कह रहा मगरमच्छ को भी पकड़ लेता, हाथी को भी अटैक कर देता है। इसीलिए जब शेर आता है ना, जब वो भूखा आता है, तो जानवरों को पता होता है कि अभी भूखा है, और ये तो ब्रो दैट इज वेयर यू लर्न मैनहुड फ्रॉम। ओके, इट इज नॉट कि मैं 24 घंटे शेर को देखा कभी चुप धाड़ता रहे, कुत्ता थोड़ी है, दौड़ता घूम रहा है भैंसो, पॉइंट है ना, भाई कुत्ता है, पालतू होता है, ठीक है, भौंकता रहता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसमें कुछ पता है लोगों को तो पट्टे से बांध लेंगे। तो गाइस प्योर दिल्ली बॉय स्टाइल में दैट इज अल्फा में। अरे भाई मजा आ गया ये बात सुन के। अरे भाई हाँ, बस मजे ही लेने चाहिए लाइफ में, यू नो, गॉड इज गिवन अस सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आई हैव बीन to more than 15-16 countries, right? And definitely, you know, plan to go to more.
It is not for you to ego ये वो भाई मैंने बहुत करके देख लिया भाई. My dick is the biggest. Come. Bro. Nobody goes anywhere. Nobody gives a fuck, bro. At the end of the day, you know what people care about? How you made them feel. Like if I meet you after 10 years ना, you like यार इसका उस टाइम मजा आया था. अब इनको यार कितना तगड़ा बदमाश था ये. Nobody gives a fuck. The other day we all sat with one of our very good friends at a cafe. I think we had like an amazing conversation there. Yeah, of course, bro. It was such a meaningful conversation. Yeah. And that's why we're here today, na? So it wasn't like, and people, मेरे को ऐसे लगता है कि they've stopped having meaningful conversations. Bro, आप अपनी मेरी बात कर रहे हो ना? मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया सलमान भाई को ना सलमान खान के लिए जानती है, right? He Salman Khan, यार, he one of the biggest stars. Like I arguably would say one of the biggest stars in the dude. Sorry, man. No problem. That's one thing I fucking lose my shit on. Okay. Sorry. Yeah. Biggest star in the world. So Salman Khan is one of the biggest stars, arguably, not only in this country but also in the world. Because bro, India is a population of 150 crores, man, right? And to have this kind of fan base and the money and the stardom, everything, right? Correct. You know what do I remember him for? That every time he meets me, bro, he will stand with me. He sat down with me for 2 hours without any motive. बातें करेंगे यहाँ वहाँ की, like how a normal person does. Like eventually he will ask me कैसे आया, गाड़ी लाया, तेरे को छोड़ दूँ. It's like, and I am not his friend. I am someone who was on one of the seasons of one show he does, okay, in which he liked me, and he stands by it because he thinks that every time I walk into his world, his vicinity, I give him due respect. मैं ऐसे क्या भाई सलाम वालेकुम and this and that करके नहीं जाता. I go to him, hi bhai, how you doing? And he makes me sit down and he's like, Sid, how you doing, brother? And we talk. It is not, I'm not there to ask for any favors. I might just, because yes, I am young, I'm younger, right? He might just offer me something someday, because when my dad died and he got to know, he kept his hand like this. We were at the after party of Jai Ho premiere, and Preeti Zinta was there talking to Bhai, and Bhai saw me, and he's like, Sid, I got to know what happened to you and about your father. Don't worry yaar, मैं हूँ ना तेरा बड़ा भाई. So not that he gave me the world. Nobody gives you the world, and he should not, because अगर वो मेरे को कुछ दे देंगे ना, सब कुछ दे देंगे, तो आप अपनी जर्नी नहीं जी पाओगे. मुझे बड़े लोग बोलते हैं उसका सलमान खान तू इतना अच्छा जानता, तेरे को कुछ दिया क्यों नहीं? और मैं कहा मांगते ही रहोगे क्या दुनिया में? मैं कहा भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता आए बंदे तेरी रजा क्या है. And the thing that you said, no, कि मांगते ही रहोगे, वो then that relationship becomes very transactional. वो भाई, right? देख ये इतने बड़े लोग होते हैं, they've seen so much in life. Absolutely. ये ना किसी की चाल से बता सकते हैं कि ये मतलब से आ रहा है, कि ये खाली एक अच्छा लड़का है, और इसको देख भाई उनको भी पता है मैं सलमान खान हूँ, है ना? Correct. तो उनको भी पता है कि भाई मैं, तो उनको पर जो सेफ्टी महसूस हुई होगी ना कि यार he is a good guy. ठीक है? We can sit and have a good conversation. Every time I sit with him, he tells people, for me, Sid was number one. He should have won his show. Okay? And that's more than enough. That's more than winning that show, actually. Correct. So the point is, I remember such a big star by how he made me feel. Okay. Now there are a couple of okay. Actually, to be honest, I think Ranveer is quite an asshole, because he and no offense, like people love him. There's a big fan base, but he acted very because he came to Big Boss and he's like, bro, me and Anushka were talking, you're so cool and this and that, and I'm happy. I didn't ask him for all those compliments, right? Right. Bhai, या तो तू ना ही बोल, ठीक है? Because bro, you're a big star. I can understand if you don't want to compliment me, right? Yeah. But you're saying all of that. You're saying, बाहर आ मिलेंगे. I actually ended up meeting him one of the parties, and I'm like, Ranveer, bro, you're so cool. And he's like, bro, me and Anushka was saying you're so cool. I said, thank you so much, brother. It means a lot. And at that time, I had come out of Big Boss, right? So I'm like, Ranveer, give me your number, man. Maybe we can work out together something. And bro, I've been working out all my life, right? And he works out. तो मैंने ऐसे बड़े भाई की तरह बोला यार, ठीक है, कि बड़े भाई छोटे भाई whatever, like same age. तो नहीं, I think बड़ा है मेरे से थोड़ा सा. तो bro, yeah, bro, take my number. Bro, he gave me wrong number यार. For what? भाई तू सीधा बोल दे कि bro, मैं ना बड़ा focused आदमी हूँ, मैं ना दोस्ती यार रखता नहीं, ठीक है? But you would have appreciated that अगर ऐसे यार पता है क्या है,
ये ना ये फेक लोग होते हैं। पहले भाई पहले तो आप घुसा गिरो मेरे को पिछवाड़े में इतना, फिर ठीक है वो फिर घुसा रहे हो तो फिर गलत नंबर और ये वो, तो यू नो दैट you know I don't bro Sushant Singh Rajput one time I met him, okay, he knew of me, I knew him, right? It was when he had done Dhoni. अच्छा bro trilogy का एक क्लब होता था, तो अपन मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, सेम like industry, right, way bigger star than me. तो हमारा टेबल ना साथ साथ था, ठीक है, मैं किसी और के टेबल पे था और सुशांत की अपनी टेबल थी, वो भी किसी और के टेबल पे था शायद। तो मुझे कहता है ब्रो मैं ना तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, सुशांत इज टेलिंग मी। फिर मैंने उसको बोला, मैं ब्रो दिस शुड बी माय डायलॉग। कहता अरे भाई क्या पिएगा बता। तो मैं कहा भाई तू जो भी पिएगा छोटा भाई समझ मुझे भी दे दे। तो ब्रो ही टुक मी वेरी नाइसली, मेड अ ड्रिंक और बता ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद तो उसका लोग आ रहे सुशांत ये वो, उसको भी पता था टाइम, बट दोज 60 seconds ना he made me feel very comfortable, okay, he didn't try to tell me कि वो बहुत बड़ा स्टार है। मैंने उसको बोला, मैं कहा सुशांत भाई one day I really want to do a film with you and play your brother। कहता जरूर करेंगे भाई। तो इतना ही बहुत होता है ब्रो, आपको कोई अपनी जमीन जायदाद नहीं देता, आप कैसे फील कराते हो वही होता है, ठीक है। अभी नाउ कमिंग बैक टू योर मीटिंग विद मी, राइट, आप पहली बार मेरे को आए मिलने, अरे दीदी पीछे ना है, नहीं है ही नहीं, कैश ही नहीं है। खोले कैश ही नहीं है भाई। अब आप बता, मैं दूंगा 50 रुपए दूंगा। बता मेरे बाप, असली नाम बता मेरा, हाँ सच्ची बताइयो, जितना सच। मेरे माँ बाप ने नाम मेरा राकेश रखा था। राकेश रखा था, हाँ। और कब बदला ये नाम? मेरी उम्र 8 साल की थी तब बदल गया था नाम। पक्का? पक्का। ऊपर वाली कसम। किन्नर समाज से मेरा बहुत पुराना हुआ, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बहुत खास दोस्त हूँ। अरे मेरे सेठ एक बात बताओ, हाँ। आपकी नजर में कोई भी असली हिजड़ा हो, नंबर लेके जाओ, मेरी बात कराना। लाइट हो गया, आता हूँ घूम के, मेरी बात कराना। हो गया, वहाँ पे मिलो। तो हाँ, so you know bro, you came, right? I could have been in my zone, okay, you came through Priyanka and whatever. I liked your vibe, bro. I am the kind of guy, I reciprocate. बहुत बारी मैं मुंह के बल भी गिरता हूँ, क्योंकि स्पेशली दिल्ली में, ठीक है ना ब्रो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि आंड के ना पांड के, ठीक है, और मतलब बहुत भांड के और पखांड के और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, you know, just because भाई तेरे घर वालों ने भले वक्तों में 1970 में कोठी ले ली थी, ठीक है, उसको तुमने नए फर्नीचर लगा लिए और घर बुला के तुम यू नो बोतल किसी को खोले, वो भाई लाइक सम पीपल ना, इट्स लाइक ब्रो तेरे पूरे जिंदगी में एटमॉस्फेयर में ये ब्लैक लेवल की बोतल जो तूने खोली ना, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यू। हाउ तो और पता है क्या होता है, मैं ना ऐसे कभी वो हो जाता हूँ, वाइब कर देता हूँ, यू नो आई गिव देम रिस्पेक्ट, तो ना वो सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, फिर जब मैं उतारता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं लाइक किसी को बोला भाई आप और भाई मैं आपको बोला ना, वो एकदम से तू तड़ाक करने लग जाते हैं, कंफर्टेबल। हाँ, तो मैं उसको याद दिला देता हूँ कि ब्रो तू मिला था तो फैन वैन टाइप नहीं बोल के मिला था, हाँ पर भाई मैं कहा नहीं भाई मैं तेरे फ्रेंडली हूँ, मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि पता क्या है मेरी ना एक बड़ी फॉर्च्यून कह लो, लाइक मिस फॉर्च्यून कह लो, मैं दोनों भाषाएं ना बड़ी अच्छी तरह बोल सकता हूँ। So when I'll talk in English, you'll be like, this guy harmless, what you like, you know, he's not gonna be. पर अगर मैं देसी पे होगा, मैं अपनी पे आ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं पला बड़ा जाटो की गैल, और भाई मैं खुद पंजाबी और पिंड से है, मेरा बापू गैंगस्टर, ठीक है, तो हमने भाई वो जिंदगी देखी है। मेरे बापू में मतलब मरते समय में 14 तो केस थे, ठीक है, चंद्रावल गाँव की पैदाइश में, ठीक है, और मतलब 36 तो बंदूकें मेरी दादी ने चद्दर में लपेट के उसमें फेंकी थी नहर में, ठीक है। तो ब्रो मैंने ये सब देखा, मेरे बापू ने मेरे को निकाला उन चीज़ों से कि नहीं यार मैंने इंग्लिश नहीं बोली, मैं बदमाशियों में पड़ गया, ठीक है, मेरे डैडी बॉक्सर थे, ना भाई मैं अपना लड़का चाहता हूँ कि यार ये इंग्लिश बोले, साउथ दिल्ली में जाए, ठीक है ना। तो भाई हाँ, पर फिर भी वो कहता ना खून उबाल मारता है, तो हम भी को बचपन में वही शौक था भाई कि हम भी लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर लड़के को होता है 16-17 साल की उम्र में, है ना, पर उस टाइम पे हमने रज के करी भाई, ठीक है, जिस टाइम पे हमारा लड़ाइयों का समय था ना, डिफेंस कॉलोनी लेके वसंत विहार तक, ठीक है, खून में लहू लुहान होके घर नहीं गए 4-4 दिन, अगर ये गोल बना लिया कि जिन लड़कों ने मारा था उनको मार के जाएंगे घर, तो घर नहीं गए भाई, नींद तभी आएगी। पर अब क्या है ना, अब वो जो है ना वो कहीं डीप डाउन बेरिड है, पर बेरिड वाले डेविल का पता है क्या होता है,
कि अगर वो उसको जगा दिया जाए ना ब्रो, तो वो इतना खतरनाक उठता है ना, क्योंकि वो बड़ा खुश था सोता हुआ यार। तुमने उसकी हाइबरनेशन जो खराब करी लोग ना, रियलाइज नहीं करते। हाँ, है ना? तो लोग क्या होते हैं ना ब्रदर, लोग ना जान नहीं पाते कि जान जो है ना दुनिया में, जब आप 2-3 ऐसी हादसे झीलोगे ना जिसमें आप ऑलमोस्ट मर गए, एक्सीडेंट हो, लड़ाइयाँ हो, आंखें खुल जाती या आपने अपनों को मरता हुआ देख लिया हो, आप ना ये टोरेबाजी होती है ना, ये छिछोरी सड़कों की, ठीक है भाई, कहाँ है ये कर, लोकेशन भेज और ये कर वो कर, वो कहता God here, bro. Yeah. Nobody gives a about you. True. Like, what you talking about, my boy? मतलब, you're gonna go out of India and represent India like the same old bullshit way? Because you ain't even fucking trying to learn something new, my boy. And You're still same old. भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, bro. Let me tell you, जो सही में करने वाले होते हैं ना, त्यार दिल से एक फोन करवाएंगे वो, ठीक है, और बेटे बोलेंगे नहीं। जो सिद्धू को मारना था ना, बोल के नहीं मारा उन्होंने, ठीक है। वो ऐसे आए थे, भाई सेल्फी लेना, ठीक है, उन्हें सेल्फी लेती ते नाले अगे काम कर गया था। तो ब्रो, ये बोलने वाले जो होते हैं ना, ये एक अलग प्रजाति है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। आपने बात की, यू टॉक्ड अबाउट लाइक हाउ योर डैड वांटेड यू टू कम आउट ऑफ ऑल दिस एवरीथिंग। वन लाइफ लेसन दैट योर डैड गेव यू दैट यू स्टिल स्टैंड बाय, व्हाट इज इट? Bro, actually, my dad's life was a very troubled life in itself. But one lesson I got from all the domestic violence I saw in my personal life, which actually shaped me to be the man I am today. You can ask any of my exes, okay? I have never raised a hand on a woman, okay? मतलब टपली टुपली मार दिया अपने आप को। मैं बहुत पिटा हूँ लड़कियों से, 100%। मेरी हर एक्स ने मुझे मारा है, पता नहीं क्यों। भाई मैंने LA में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पुलिस बुलाई, मैंने लौंडा हो गया, मैंने भाई मार रही मुझे, वो मेरे को देख रहे, मैंने कहा भाई ऐसे मत देख, फिर मैं मारता तो फिर मेरे को तो लंबा डाल देता, है ना, तो फिर भी उन्होंने मेरे को ही डाला। बट द पॉइंट में दैट वाज वन लेसन आई गॉट, दैट यार औरत को नहीं मारना कभी, ठीक है, और ना औरत को ना गाली देनी। मेरे पे ना एक यार व्हाटएवर, उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। किसी ने एक बहुत ही निहायत गलत और झूठा मेरे पे केस भी किया था सड़क पे, और सिर्फ फेम के लिए, एंड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट कि यार मैं उसको मैम बोल रहा था, मैम प्लीज मेरी गाड़ी भी नहीं है वो, एंड शी डिड दैट। मैंने आई कैन नॉट टॉक टू मच अबाउट स्टिल इन कोर्ट, एनीवेज, बट खुदा की कसम ब्रो, ये चीज़ मैंने सीखी अपने बापू से, और मैंने अपने बापू से एक बड़ा अच्छा लेसन लिया, ठीक है, विच इज लाइक बिकॉज ही वाज अ नेशनल लेवल बॉक्सर, राइट। सो मैंने एक बड़ा अच्छा लेसन लिया कि जिंदगी में ना बेटा लोगों पे डिपेंड नहीं होना कि भाई मेरी लड़ाई में ये आएगा और ये आएगा, कोई नहीं आता। जितनी हाथ अपने जाने हुए ना उसके बल पे लड़ियो, क्योंकि जिस दिन जिन पे तू चौड़ा होता ना वो नहीं हुए, उस दिन क्या करेगा। और मेरे डैडी ना भाई, कभी किस्सा होगा ना, कोई बड़ी सी पॉडकास्ट होगी, सही बता रहा हूँ भाई, उनकी जो लाइफ है ना, उनके जो किस्से हैं, उसमें पिक्चर बन सकती है भाई। कोर्ट के बाहर गोलियां चला, हरीश पंडित, ठीक है, तेजपाल, ये श्रीपाल, ये जितने भी दिल्ली के बदमाश थे ना, मंडी के, ठीक है, मेरे डैडी को मिलते करते थे बिल्लू भाई, ठीक है। तो वो उस गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो जो लेवल था ना गैंगस्टर्स का, जहाँ पे दिल्ली का मतलब जो दिल्ली का माफिया चला रहे थे उस समय का, ठीक है, गाजियाबाद का त्यागी गैंग और ये वो। तो मेरे डैडी कोर्ट गए थे, ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ, कह रहे कोर्ट उतरे हैं हम उसमें गाजियाबाद कोर्ट में, कह रहे उतरे अम्बेसडर कार में, और ठा पहली गोली उस पर बजी है। डैडी कह रहे मेरे पास तो ना गन ना कुछ, कहते क्या करोगे, उससे थोड़ी कर सकते, तो वो कहाँ से गोली चला रहे वही नहीं पता। कह रहे तो हरीश का केस था, कह रहे हरीश के पास गन थी, कह रहे मैं सीधा गाड़ी के नीचे हो गया, क्योंकि तो मेरे को पता था कि अगर मैं, कह रहा मेरा कुछ काम ही नहीं है, कह रहा उसने लास्ट बंदा उसने कोर्ट के अंदर मारा जाके। तो भाई इनके वो किस्से थे, ये लोग एक अलग लेवल पे बदमाश भी थे, करेजियस भी थे, और ट्रबल्ड भी थे फिर बाय द एंड ऑफ इट, ठीक है। बिकॉज उस लेवल की बदमाशी, उस लेवल की चीजें देखना, आप ट्रबल्ड भी होते हो। थैंकफुली मैंने नहीं देखी उस लेवल की चीजें, पर हाँ मैं उस खून से आता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि लड़ाइयों के अंत क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम लगाते हैं गाड़ी, क्योंकि अब भाई का टाइम हो गया गाड़ी चला। अब मैं भी हाँ अब ना इस पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, इससे ना पानी पुनी ले लेंगे,